ओके एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? साहिबा आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। गुड गुड। सो ट्रेनिंग एंड वालेकुम डेवलपमेंट। सलाम जी। हेलो अस्सलाम साहिबा आज आपकी तबीयत ठीक है? आपकी मीटिंग तो नहीं हमारी वजह से मिस हुई? मैं तकलीफ के लिए माजरत खा हूँ। यस्टरडे आपकी मीटिंग मेरी वजह से डिस्टर्ब हुई, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं बहुत माजरत खा हूँ आपसे। ओके, सो हु कैन रैप अप द लास्ट लेक्चर? आमना, सलमा, ताहा, हु वर हियर? I was not there in the last class, sorry. इसलिए मैं rep नहीं कर सकूँ. Yeah. Salma, over to Okay. you. 5 minutes. Wrap up. Okay. Basically, the topic was developing learning in organization through training and development. और इसमें बेसिकली हमने एक 3 क्वेश्चन किए थे कि ट्रेनिंग है क्या, ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेनिंग प्रोवाइड क्यों करती है, और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एंड लर्निंग में डिफरेंस क्या है, और बेसिकली व्हेन डू वी प्रोवाइड एंड व्हेन डेवलप। ठीक है जी। इसमें कुछ ग्रुप डिस्कशंस थी और इसमें ये बताया गया था कि अगर कंपनीज ट्रेनिंग्स नहीं प्रोवाइड करती तो वो गैप्स आ जाते हैं जिसको है, और ट्रेनिंग की नीड क्या होती है। उसके बाद हमने इसको डिस्कस किया था एक ब्रिज के तौर पे, जिसको आपने बोला था कि ऐसे गैप्स कहलाया था। एक मतलब एग्जिस्टिंग क्या होता है, रिक्वायर्ड क्या था। फिर उसमें एक एक्सरसाइज आपने कराई थी और बेसिकली आपने हमें इंटरनल नीड एनालिसिस पे बात किया था कि हमें चाहिए क्यों होती है ट्रेनिंग, और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग क्या था, बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग्स क्या था। ये सारा हमने इसमें डिस्कशन किया था। अभी कुछ और, हाँ डेफिनेटली हमने स्टाइल ऑफ जो ट्रेनिंग्स के जैसे लर्निंग एंड कोचिंग में और मेंटोरिंग में ये सारी डिस्कशन हुई थी कि इसमें क्या डिफरेंस है। आई थिंक यही था। Anyone else would like to add? Maqsad, would you like to add? Were you there in the last lecture? Mehreen, आप कुछ add करें? Yes, I was there, and but I just don't have the slides, I think. That's why I'd like to kind of I think I shared all the slides in the remember. group, and you guys also discussed those Well, slides. probably I missed it because there is another group, I think you have added us. So you guys made your own group as well? Pardon? I think I am running only one group, but if you guys have made another group, I don't know. Oh, okay, then I need to check whose group is that. Fine. So It's a WhatsApp group. I just want to ask you randomly, Saman, what do you think? What is purpose of training and development department in any organization? Sir, it has multiple purposes. Top 3. It is to top 3 होता है sir, technical skills को enhance करना जो required है, the required social skills so that you can do organizational development. Okay. Third one. और sir third जो होता है वो होता है to make future leaders. So you said first of all we have to provide the required technical skills. Yes sir. That is the function of training and development department, and the second is to prepare future leaders. जी sir. And third is sir for strategic growth. So for strategic in, growth of the organization. जी sir, strategic growth of the organization as in new roles, changing of jobs, तो उसके साथ training आपको करनी पड़ती है, multitasking, multi-skilling people.
so that you have that human resource internally when you make a change. Okay, so you belong to a hospitality industry, right? Yeah. So there are two industries where we continuously need trainings. One is hospitality industry, and the second is, you can say, retail sector or customer services kind of organizations where they mostly interact with customers, like banking, like so over there you always need to tell people how to do their job more effectively and in a more better way. Ji So sir. someone, when you so you were stressing on the word, the required technical skills. So how do we know what are the required technical skills? So when you have the JD, as we discussed previously, usme job description mein you have the skills, the technical skills and the soft skills. So Okay, when you hire a person for a role, uske andar maybe he has the thing, but not the way you want it. That's why you have the onboarding program. In that you actually tell the person how the skill that he's developed for is done in your organization. The so skill let's say set is you the have, same. so let's say you have somebody, everybody please listen very carefully. We are going to have very important discussion because I want you to know what is meaning of this required skills. So for required skills, the source of information is your job description, right? Ji sir. So from job description, let's say you believe and you get information that Ghulam Mustafa should have these three technical skills. Okay. Right, So, sir. so now you need to provide those skills. What if he already has those skills? Those skills would already be with you. That's why you've been hired for a post. But specifically how those skills are going to be practiced in our company is what we teach you. Okay. So we teach those things in a training. Ji sir. So for example, if you have three skills, let's say I have one skill is how to convince people. Second thing, how to influence people. Third skill, how to write a document. So, so I should learn in training that how should I influence, how should I convince, and how should I write. So that is not the required training, that's soft skills. Okay. Technical required training hoti hai how to set up a table in 3 minutes. LHW standard आपके SOP के हिसाब से. Then standardization. Everybody has to set up the same table in the 3 minutes with the Okay. same cleanliness standards, with everything. That is a required training for a waiter, for instance. So Okay. everybody who's in an outlet has to do that. That is a technical requirement. When you talk about persuasion skills, that comes to a higher level skill category, and plus that's a soft skill. Okay. So So now we learn that apart from technical skills, we also have to provide soft skills. Ji sir. So let's come back to technical skills. So how do we know that a person is, let's say you have an old employee, okay, ठीक है sir. and he's not a fresher, but how would you know that he needs, he doesn't have those required technical skills? Okay. Sir, the LHW standards that we have for every outlet, we have different standards which go to the setting of the table, to the ambience, to the So temperature. to everything. LHW means Lahore Holiday Leading- Workstation. Leading hotels of the world, sir. Okay. Best service quality standards of the world. So Okay. it's an audit that is done independently. और Okay. उसमें it is categorized into different categories for an outlet. Like say आप किसी restaurant में जाते हैं, it looks like it's one, but it's not. It's Okay. got different processes in it. So for every process, starting from the layout of the outlet to the temperature, to the music, to the cleanliness, is one thing. Then there's the service aspect. Then there's the resetting aspect. So everything is actually quantified, and every person who's in that outlet is first pre-tested, then simulation, then post-tested and observed. We hold random trainings and we keep records of everybody. Everybody has to have 3 cycles in 1 quarter of all those training, whether you're a refresher or you're somebody who's been with us for a long time. Because for standardization of service across the brand, you need to have the same person. It could be anybody, but doing the same thing, it could be different people, but the experience has to be the same. That's standardization. So now over here, things are different now.
So Yes, sir. everybody, if you remember in last class, we discussed the reasons of training. The first, one of the reasons were also to meet legal or process requirement. Everybody remembers? Now someone is explaining the same thing. So if you have any standardization requirement, or if you need some certification for your organization, or if you need to maintain some international requirement or some legal requirement. So when we say process, it becomes a law for the organization. So they have to obey it, they have to follow it. So we normally bring this requirement in the category of compliance, process, and law. And for that purpose, we need to provide certain trainings to our employees, which can be related to technical skills and which can be related to your soft skills, or which can be related to leadership skills. Let's say there can be a requirement that every trainer, every employee should have some financial skills, or every manager should have financial skills. So for that particular purpose, we need to arrange certain things. Yes, Marine. So, for example, in our organization, we are following ISO standard 9001. Exactly. So There are we have certain to have, requirements. yeah, we have to have a standard procedure for that. For example, in admin, there has to be an employee first aid box. There Yes. has to be proper fire exits labeled, and there should be a fire drill or an emergency exit training to employees. There should be a drill of that sort, and there are certain other requirements of filing of standard operating procedures of backup of ISO. So we have to follow all these for every department. And because I'm working in compliance also, so I have to make sure that quality processes and procedures are being adopted and followed as per the standard. And then we have an external audit for this. Exact. So first of all, you have to give a training to all the relevant stakeholders, or all the employees of departments, all departments, that we need to have these requirements. We have to follow them. So for that particular purpose, you arrange a training and you tell all the employees. And then as per ISO requirements, you also have to maintain the record, that you have to arrange attendance sheet. You have to then get training feedback from all those employees. So those are the witnesses of training. Uh, I mean, that you have conducted that training. Like in my Um, class, there is no requirement, no attendance. Anybody can come, anybody can go. So we discuss things. It's totally up to you. So if you want to learn, if you want to gain knowledge, you can join class. If you don't want to, because it is like your professional development, it's a personal development course. It's not like something related to your job. Yes, Salma. My question is that you mentioned attendance, maintaining the record of attendance. Okay, Yes, it's in a hard copy. You are talking about the hard copy or the hard soft copy. copy? Hard copy. Okay. For how many years you have to maintain that particular record? For how long? It depends on the data management policy of the organization. Generally, Okay. yes, My Three to question 5 here, years, okay. because I basically the in every organization there's an internal audit and an external audit. I basically talked to them and they said as a set procedure we need a 5 years back record of the attendance. After 5 years you can some of the years previous years you can burn it, or you can waste it. Otherwise you have to kept 5 years a record for the attendance. yes, जी actually, हम लोग भी 5 years रखते हैं. Salma, you're right. We also keep for 5 years. जनरली जो प्रैक्टिस है जो इंडस्ट्री की, वो 3 to 5 years है. लॉ भी यही कहता है. But if you remember the case of Mr. Nawaz Sharif, or nowadays NAB is asking data about last so many years. Even they they might ask you to bring a proof of your birth, in which hospital, what time, things like this. But as per practice, or as per law, let's say the requirement is 3 to 5 years. Generally, this is the practice which is followed in corporate industry. But I always suggest, even then, if you can manage to hold a record, please do it. So that if in future, after let's say 10 years, you need evidence of something related to your official matter,
You need that record. For example, if you hired somebody, let's say in 2008, now we are in 2021 and that person is still with your organization and you need his attendance record, what will you do? You need to present it. You will bring it Go in down. the HCMS and take it out. Yes, we have ACMS a or soft copies, na? soft copy, hard copy, HCMS or में whatever होगी. copy. You have to produce that information because it depends what sort of record you need. And do you need record of existing employee or the departed employee? Let's say after 5 years of leaving the organization, after 6 years of leaving the organization, an employee sues the organization for any reason, and for that particular purpose you need some data related to him. What will you do? You need his data even after 6 years, so you need to keep his file in the record room. So I add something here because you are right. Yes, it's you basically are given a very harsh example that somebody sue you. Once I joined working with the Beria town, and they have the people they hired a security guard. Okay, and its services has been more than the 15 or 25 years, and suddenly he died, and he needs a pension, EOBI. Okay, and EOBI demands me for some certain list. They asked me, gave me a certain the list to provide me, and then they asked me to provide me the attendance from once he joined, from that day till with the end of his services. So basically, I discussed with them and I said, I don't know when he joined Behria town actually, but he said, okay, but the head office provide that attendance in a soft copy, and I also provide the attendance in a soft copy. As per the EOBI government or the person who is actually dealing his case, he said the soft copy is a fine to us. At the end of every soft copy, you signed it, and we accept that. जी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं. जी ज़फ़रीन. सर ये पर्सनल फाइल का रिकॉर्ड फिर हमें कब तक रखना चाहिए एम्प्लॉय का, कितने अरसे का? एक्टिव का या डिपार्टेड का? सर जो उन्होंने जो लेफ्ट हो गए, रिजाइन कर दिया है, चले गए, उनका जो लीव कर दिए. अभी जो लेटेस्ट प्रैक्टिस आ रही है, अभी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि because you have a limit of your record room as well, and let's Yes, say sir. if you are changing your office location from one place to another place, so you face problems. There are Yes, some sir. organizations for whom things are very easier, like if we go to banking sector, restaurants, or so there are some laws already defined by, let's say, State Bank of Pakistan. If you are a scheduled or scheduled bank. But for private limited companies or for SMEs, there is no such law available for only this practice is followed like 3 to 5 years valid. But nowadays what organizations are doing, they do the scanning of all the documents, they upload on some shared place, let's say on shared server or cloud based, and they keep record like this, and they can discard the hard copy because they believe now they have the soft copy available and they can get the required documents whenever they need it. Yes, Mr. Taha. सर अभी रिसेंटली हमारे साथ भी एक इस तरीके का केस हुआ ना, एक वर्कर ने जो है वो एक वर्कर ने केस कर दिया ना कि मैं 12 साल से कंपनी में काम करता हूँ, तो मुझे इन लोगों ने जो है ना मेरी 12 साल के ग्रेजुएटी नहीं दी. तो अब सर सीन उसके साथ कुछ ऐसा था कि वो 12 साल से जो काम कर रहा था ना, तो उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट पे था. हम लोगों ने जब मूव करा तो 2 से 3 साल हुए थे कंपनी में मूव करे हुए. तो जब कॉन्ट्रैक्ट पे जब हमने कॉन्ट्रैक्ट पे उनसे साइन वाइन लिए थे, उसके सारे अपने ओन थंब इम्प्रेशन थे ना. तो जब हम लोगों को कोर्ट बुलाया तो हम लोग वहाँ पे सारी चीजें तकरीबन हमारे पास 4 से 5 साल का डाटा था जिसपे उसके पेरोल पे साइन हुआ था, उसके हर चीज पे साइन था जिसपे उसने एग्रीमेंट करा था.
तो जब हम सर वो सारी चीजें लेके गए, हमने उनको बताया कि जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट पे थे तो कोई एनुअल लीव्स, कोई ग्रेजुटी हम पे करने के एबिल नहीं है इनको। हाँ, अब जब से कंपनी में आए तो 2 से 3 साल हुए, उसका हमने इनको ग्रेजुटी भी दी है, एनुअल लीव्स भी दी है, जो चीज इनकी बनती थी वो हमारे पास फुल एंड फाइनल की सेटलमेंट भी थी। तो सर जब हमने वो सारी चीजें दिखाई तो वो बंदा खुद वो हो गया कि हाँ, मतलब वहाँ पे फिर केस जो है ना सॉल्व हो गया। अगर हमारे पास ये सारा प्रोवाइडेड डेटा नहीं होता ना तो फिर हम ट्रबल में आ जाते। अच्छा, मैं उसकी जगह होता, लेबर मैंने केस जीत लेना था। सर वो लेबर कोर्ट जिस पहुंच गया था। लेबर कोड में वो सही था, हाँ हाँ। उसका केस बिल्कुल ठीक था। कितने साल उसने एज ए कॉन्ट्रैक्ट काम किया? सर तकरीबन हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट पहले शुरू में कॉन्ट्रैक्ट पे ही होते थे ना वर्कर, कितने वो कितने जेंट्स साल? पीछे वर्कर्स उसका जो 10 साल का रिकॉर्ड था। सात हाँ। सात साल 10 साल 7-8 का। साल। एज पर लॉ यू कैन ओनली कीप एन हाँ। एम्प्लॉय ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 ईयर, दैट्स इट। यस, उसके बाद वो परमानेंट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। एग्जैक्टली यस सर, बिल्कुल सर। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, रिन्यू करते हैं तो फिर 9 months, सर 9 व्हाट months, अबाउट कि अगर 9 कॉन्ट्रैक्ट months. रिन्यू किया गया? कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना, फिर आपने पहले जो लीगल रिक्वायरमेंट है, अगर आपने फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की, अब हम इंडस्ट्री रिलेशन में चले गए हैं, लेबर लॉज। सॉरी मकसद, बिकॉज द टॉपिक इज समथिंग रिलेटेड टू लोकल लॉज, सो वी हैव टू यूज उर्दू लोकल लैंग्वेज। सॉरी फॉर दैट, excuse us for this, please. So anyways, Yeah, yeah, But okay, but there are too very many smart. noises that are coming outside, that's why I was just yes, confusing. I just want to let you know that beside that, your guys are talking Urdu, or is that Pashto, or whatever is this? There are noises. That's why just okay. So please, I can understand few of your words, but so please keep your mics off when you are talking. Who is? Just give me a minute. I have to take a call, an urgent call, please. So, Mr. Maqsad, actually, we are discussing a legal case, a court case. So, anyway, in that case, what was the issue actually? So, that person was right. If you have one contract which is continuously keep on increasing for like 10 years, in that case, he can claim gratuity or provident fund. But if every year you are, let's say, after completion of 1 year contract, so you are, next year you are making a new fresh contract, don't renew it, just make a fresh and new contract. Then as per law, he is not eligible for such kind of. And generally what you have to do, you have to keep a gap for like 3, 4, 5 days. okay, I see. I got it. Safreen, Yes, sir. We do all the renew the contract. Taha. no, We do don't renew renew the it, contract. make fresh new contract. Yes New sir, we make contract. fresh contracts.
Yes. fresh contract we make. So that's why he couldn't. Clear He his could, point at the court. And also you have to yes, issue him new employee code. Yes, sir. Yes, sir. We provide a Yes, new sir. employee card. That's what. Ji Abdullah. Yes, sir. That's what the point I was willing to raise. That we have to generate new employee code for that particular employee. Yes. So वो देखना पड़ेगा, अगर वो मेरे पास आता तो मैं फिर उसके लिए कोई ना कोई हल निकाल लेता इंशाल्लाह। लीगल कानून में जो है ना बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपको किसी को केस करना हो तो भाई हाजिर है, पहले मेरे से मशवरा करें। ओके ठीक है सर। मैं कोशिश सर, हम करूंगा कोई ना कोई आपको आपके फेवर की चीज निकाल लूं उसमें। अल्लाह करेगा सर ये नौबत नहीं आए। नहीं आनी चाहिए, लेकिन आ भी जाती है। हाँ सर, आ भी जाती है। हाँ, रास्ते निकल आते हैं बीच में, अल्लाह की जात रास्ते निकाल देती है। सही बात। भाई अच्छा रहा कि ये नौबत निकल गई, पता भी चल गया। देखिए सिचुएशन जो है ना किस वक्त चेंज होती है, आप लोग ना जरा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। मेरे पास एक केस था, उस केस में मैं बड़ा कुछ कर सकता था, लेकिन वो जिसका केस था ना वो बंदा जरा कमजोर पड़ गया। मैं फिर खामोश हो गया। मैंने कहा देख लो भाई तुम्हारा केस है, अगर तुम चाहो थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, इसमें हम अच्छे खासे पैसे ले लेंगे। टर्मिनेशन केस था वो, तो आउट ऑफ कोर्ट हम सेटल कर लेना था। मैंने कर भी लिया था तकरीबन, लेकिन बंदा ज़रा हल्का पड़ गया, वरना उसके काफ़ी पैसे बन सकते हैं। सर एक्स ग्रेशियो वगैरह भी तो होता है ना टर्मिनेशन पे, अगर कंपनी करती है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल की है, कितना वो जी, जी। स्मूथली चीज़ों को लेकर चलती है। लेकिन थोड़ा सा ज़रा पेनफुल काम होता है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के जो मसले होते हैं ना ज़रा पेनफुल होते हैं। यस सलमा, यू वांट टू से समथिंग? मुझे से भी अभी इन्होंने क्या बोला, एक्स ग्रेशिया। वो तो डेथ की सूरत में नहीं होता। एग्जैक्टली वैसे भी एक्स ग्रेशिया जो है वो अब ये डिपेंड करता है। कुछ हमारे ऐसे लॉज हैं जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पंजाब साइड पे डिफरेंट है, सिंध लॉज डिफरेंट हैं, even in Tajikistan laws are different. So anyways, we will discuss in coming lectures. We are going to discuss all this. So let's not track training and development towards industrial relations and labor laws and employment laws. Get back to please training and development. So if we are ताहा discussing को प्लेंटी डालनी चाहिए आपको, इन्होंने गलत किया। आपस में जरा सर मैंने नहीं, सर बात चल रही थी तो मैंने डिस्कस कर दिया बस। अच्छा नहीं, उसको सलमा जोर से आया हुआ था तो फिर इजाजत दे दी, नहीं रहता बंदे को काबू। यस अब्दुल्ला। तो सर क्या कोई एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोवाइड ना करने के ऊपर या फिर डेवलपमेंट ना देने के ऊपर केस कर सकता है किसी एम्प्लॉयर पे? नहीं, देखिए केस करने का कोई बहाना नहीं चाहिए, तो केस किसी भी सूरत में हो सकता है। ओके सर। ये तो आपने ये सवाल किया कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन लोगों को वॉशरूम्स के लिए मशरूम शावर की जगह लोटे प्रोवाइड कर दे और वो कहें क्यों। नहीं, इसके ऊपर लॉ है सलमा, इसके ऊपर लॉ है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 1943। आपने ये पहले क्यों नहीं डिस्कस किया? स्टैंडर्ड में पढ़ना पड़ेगा। नहीं, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन में ये है कि एज पर लॉ, if you are in a factory environment, you have to arrange washrooms, and there is specification of washroom as well. You have to arrange Yes. water, and there is specification of water as well. You have to arrange cafeteria, and there is specification of cafeteria as well. It depends if you are in industrial environment, but if you are in a non-management category, we will discuss these things. But for office, and if your office comes under labor department, or let's say any inspection kind of thing can happen, you have to follow certain procedure. My office actually falls in a shop and establishment act. Okay. Okay.
And the point is here is to mention, because sometimes people actually buy a building and they don't check the emergency exit points. They don't check the better facilitations like what you call the ventilation. Because the building which we are in right now, there's basically a basement and there's a zero ventilation system in the building, and zero emergency exit. So that's why I tried. I've been actually literally fight, been with my admin manager, and they said, हम क्या कर सकते हैं? एक विजिट ईमानदार अफसर का किसका? चाहिए बस। लेबर डिपार्टमेंट से एक ईमानदार बंदे का विजिट चाहिए बस। सर बड़े मुश्किल बात किया आपने, दो मुख्तलिफ चीजें एक साथ ढूंढना मुश्किल है। एग्जैक्टली क्योंकि वो जब आता है ना तो लिटरली मतलब मैंने खुद लास्ट ईयर डील किया था। उन्होंने मुझे एक लेटर इशू किया था, कंप्लेन हुआ था वजीर आजम इमरान खान होटल के ऊपर ना, किसी ने कर दिया था और मैंने खुद उसको टैकल भी किया था। और खैर उसने जो कंप्लेन किया वो लेबर इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने मुझे लेटर दिया, उन्होंने मुझे कहा कि बस आप खाना खिला दें तो सब सेटल डाउन हो जाएगा, तो बाकी आप आके ना हमारे उससे डिप्टी कमिश्नर है, सॉरी डायरेक्टर है, उससे आके मिल लें। मैं उससे मिलने गई एंड उसके बाद वो सारा जो भी कोर्ट ऑर्डर था उसकी डेडलाइन थी 15 समथिंग ऑफ द मंथ। वो ना डेट आई ना उसने मुझसे चीजें मांगी कि क्या क्या उसको रिक्वायर्ड था, वो केस सारा गायब हो गया। उसने कहा बस जी आप जाएं, आप बस ठीक है। ऐसा हुआ था। नहीं वो एक्चुअली अभी केस स्टार्ट होने से पहले नोटिस आता है, अब नोटिस पर गई थी। नोटिस पर अगर आप जाएंगे तो केस खत्म हो जाएगा। नोटिस के बाद उन्होंने डिसाइड करना है कि केस को फर्दर लेकर चलना है या नहीं। मैंने इसीलिए कहा कि एक ईमानदार अफसर का, या अफसर के साथ आप पहले तय कर लें कि हम आपको 2000 रुपया दे देंगे, आपने वहां से जाके 1000 रुपया नहीं लेना। तो बड़ा मुश्किल काम। अब ठीक है सर। मतलब बहरिया टाउन की एग्जांपल देती हूँ, इसके ग्रीन वैली जो इस्लामाबाद में, ठीक है, उसमें 40 मिलियन की चोरी हुई थी, 40 मिलियन, और उसका अपने स्टाफ ने चोरी किया था, ठीक है, वो मिल मिला के। पुलिस केस बना, सब बना, ये बहुत बड़ा चला था, ठीक है। इसको कवर करने की भी कोशिश की थी लेकिन बहुत ज्यादा हुआ। उन्होंने क्या किया, 5 लाख रुपया पुलिस वालों को दिया, मतलब जो बंदे एम्प्लॉइज उन्होंने पकड़वाए भी पूरे पूरे, ठीक है, अकाउंटर क्या और कैशियर क्या और सिक्योरिटी गार्ड क्या और HR के लोग क्या, फाइनेंस के लोग क्या, ऑपरेशंस के सब पकड़वाए। उन्होंने क्या किया, 5 लाख रुपया पुलिस वालों को दिया और वो सबके सब घर पे बैठे हुए थे और अभी तक वो बहरिया केस रिजॉल्व नहीं कर सका, अभी तक। चलें जी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर आते हैं। So tell me, so one situation, we need to provide training to employees for compliance of law, compliance of processes, compliance of systems. Second is to enhance their knowledge, to have required skill set, required skills. So what is meaning of required skill set? That means that the skill set which you have mentioned in JD. So you compare the existing skill set versus the required skill set. So how do we compare? What are the things which tell us that this person has no required skill set? I want to know this. Who can help me? Sir, competency matrix बताएगी. Okay. Anything else? नम्रा, आप बताएं कि कैसे पता चलेगा कि इसके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है? मैं बता जी नहीं नम्रा। सर आवाज बहुत कट रही है, मेरी सिग्नल ही नहीं आ रहे ना, आपकी आवाज सही आ रही है, क्या डिस्कशन हुई इतनी देर में वो भी नहीं आ रही है सही तरीके से। तो कट गया तो बटन नहीं लगाया आपने? सर सिग्नल भी नहीं आ रहे, मैं इतनी मुश्किल से कनेक्ट किए हैं मैंने पहले भी। बस आप खामोश हैं, कहीं ये भी ना चलेंगे। जी सलमा। बेसिकली जब वो काम करेगा, ठीक है, या जब उसको कोई टास्क असाइन होता है
तो वह वहां से भी तो अंदाजा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने उसको कोई एक्सेल पे रिपोर्ट बनाने को दी और उसको एक्सेल नहीं आता होगा तो वो वहां से भी अंदाजा हो जाएगा। So one thing can be the manager when he's working. So manager can tell us that this person hasn't got the skill. So please arrange some training for this person in which he can get all these skills, right? Yes, Marine. सर अगर वी आर स्पीकिंग अबाउट द इनिशियल स्क्रीनिंग जो हम कहते हैं उसमें हम अगर फॉर एग्जांपल फाइनेंस का कोई बंदा ले रहे हैं वी कैन डिजाइन अ स्मॉल टेस्ट और स्मॉल डेमो टाइप टेस्ट फॉर एक्सेल और फॉर अदर फाइनेंशियल या इस तरह टेक्निकल में भी। और टेक्निकल में तो आई बिलीव इट्स वेरी स्ट्रेट अवे बिकॉज या आपको आता है या नहीं आता, बिकॉज देयर आर सर्टन पाइथन और दीज लैंग्वेजेस उसमें आपकी एक्सपर्टीज है या नहीं है एंड यू स्ट्रेट अवे इनिशियल इंटरव्यू स्क्रीनिंग में ही पता चल जाता है कि बंदे के पास ये स्किल्स हैं या नहीं। बाकी सर्टिफिकेशंस कैन आल्सो गाइड अस कि द कैंडिडेट हैज द राइट स्किल्स और नॉट, बिकॉज इफ ही हैज passed those certifications it means that he has studied those and he have the skills. Marine, it happens sometimes in software industry. मैं अपनी केस में भी बात करता हूँ. I am managing a software house as their director HR, and we happen to come across certain cases where we took the written test. Then after written test, we requested them for some practical exercises. So they did those projects, and we actually implemented them in projects they couldn't deliver. So we had to ultimately request them to leave the organization. And then the second thing which you say is certification. So we cannot say that if you have certification, you are talented. Because let's say आज हम HR की बात करते हैं. In HR, we have certain certifications like CHRP, international certification, SHRM certification. You can do those certifications, but do you think after doing those certifications, you can have conceptual knowledge of HR? Why do I do all these discussions with all of you? Why do I arrange these breakout rooms? Why do I arrange, I discuss with you, I send a question to all of you and then we debate on it, just for the purpose of conceptual thinking development. Because in CHRP, in SHRM or any certificate, because you people are related to HR, so that's why I'm giving you the example of HR. So you have to pass paper, and to pass a paper, you have to go through a syllabus. And when you go through a syllabus, you do some test, or you can say practice test, and then you get qualified for that test. But what if you even still don't know the concepts, how things are interrelated with each other, from where information goes to which area? That's the gap. That's the purpose of trainings. That training fixes your concepts. Again, repeat, the training which fixes your concepts and which brings a change in you, that is called learning. We discussed in the last lecture what is difference between training and learning. So training, an activity of educating you and bringing change in your behavior or your technical or soft skills knowledge, is called learning. When it ensures that there is a change, then it becomes a learning. I'm just trying to change your thoughts about training and development function in terms of practicality. कि आप लोग सोचते क्या हैं, आप लोग समझते क्या हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मकसद क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में, हाउ डू these activities initiate in the organization. So once you know it, then you can actually practically do it. अब ट्रेनिंग के अंदर दो मेन एरियाज हैं. One is the administrative things and the second is actual execution of training. So either you can be a trainer or you can be an administrator of the training institute or training department. Yes, Mary. सर बेसिकली ट्रेनिंग जो है, जो आपका गैप है या जो हिडन पोटेंशियल है आपके अंदर, वो भी उसको मजीद रिफाइन करती है. It does, but you need a source for that. How can you know कि मेहरीन के अंदर hidden talent क्या है? What is the source? Obviously job related. मतलब जो आप कह रहे हैं ना कि कोई job related, तो वो मैं ये कह रहा हूँ जैसे एक समन ने बात की competency matrix.
एक चीज और है, in every organization at the end of the year there is performance evaluation process. So in performance evaluation process we identify the gaps in terms of the knowledge, the skill set, and there are certain parameters through which we evaluate performance of individuals. And if somebody is lacking in some parameters, so that means he needs grooming or development in that particular area. And secondly, the line manager also recommends certain trainings for his team members for their improvement and for their development. Third thing, if you have competency matrix, so you evaluate people performance against competency matrix and you gauge, let's say for HR executive, you say HR executive should have at least 5 competencies. So you evaluate his performance against each 5 competencies, and there are required levels and there are actual levels. For example, to become a trainer, and if I want to deliver the job of a trainer, so as a trainer, I have to, for example, if I want to deliver international trainings, I need to have good English communication skills. So that means there is a start level, then there is mid level, then there is good level, and then there is advanced level. So if I am lying at, let's say, on level 1 or level 2, maybe international training participants will not like my way of training, as they will not be able to understand what we are discussing or what we are sharing with others. So they might not be taking me as a trainer or as their coach or as their teacher. So that advanced level English I should possess. I should have those advanced level English communication skills. So that's the level of competency level. When I say competencies, competency matrix, and competency levels, so that means I need to have those things available. So one thing organizations need is that they should have this competency matrix. Okay, let's say if they don't have it, what is the other solution? The source of information about the competency gap or the talent gap or skill gap can be your actual execution of job, and second can be your performance appraisal, annual performance appraisal. Through these two sources, let's say after every 3 months or twice a year, you can run an exercise across the organization, and you can ask the line managers or the departmental heads that if your employees are lacking in certain skills related to job, so please let us know so that we can arrange those skills enhancement programs for them. Secondly, in annual appraisals, you take feedback and you ask people, please share your requirements about training. So in that way, we can always get information, or you can say we can arrange training programs for our employees. I think because of Urdu, our friends from Tajikistan, they left us. Who is this Mahmoud Post? I'm sorry, I can't read full name. Mushtaban. Sorry, we don't know about it. Would you like to please introduce yourself? Mahmoud Mushtaban. If you can hear us. Okay, guys, so now you know the source of information about employee skill gap. Okay. First of all, we understood what is skill gap. There are required skills and there are actual delivery of skills. So if there is gap, that is skill gap. But how do we know it? Through the actual performance, actual delivery, or daily performance report, production reports, annual appraisals. All these are sources of information about employee skill gap or employee talent gap. Then if we are going to develop our employees for future, so as someone said, we have to arrange certain programs for career growth of employees, and then we consider our employees for those programs, and we arrange those programs for their future development.
I'm going to share a training brochure in WhatsApp group. So you have to go check it and give me your feedback about it. I mean, what did you learn from this training brochure? Okay. Just give me a minute. I'm unable to hear anyone. Your voices are gone. I've tried reconnecting as well. Can anyone help? Yes. Can you hear us? No. Now. Now I can. Okay, good. Actually, we were not speaking, so that's why you were unable to hear us. I thought because this has been happening twice, thrice in the session, so I thought it is again the same thing. We were testing your system. All right. So did you share in the group? Not yet, just a minute. I'm just finding the brochure. Yes, I got it. It may deliver to you anytime. जी हो गया deliver. Can you please check the WhatsApp group? Hello. जी सर, मिल गया. So please open it and then tell me, for example, if you have to design a training program, so the purpose of sharing it is to look at it from training design perspective. So for example, you are in the organization and you need to arrange certain training programs. So you need to ensure that the training program should have at least certain areas, certain things should be there in the program. Okay. Mm-hmm.
So, sir, you want comments on this? Yes. Okay, so we have the training objectives, we have the participants, we have the learning outcomes, and we have the tangible and non-tangible benefits of doing the training. This is how it's been designed. Okay. And And a anyone else? profile of the trainer. Anyone? Thank you very much, Saman. Thank you. You're Anyone welcome, else? sir. जी कोई और बताना चाहेगा? Yes, sir. Abdul Ala here. Yes. Sir, basically the brochure share it's detail oriented brochure in which each and every aspect is very clear, and the purpose of training, and who is the target audience, are the target ones whom need to attend this training. More than that, who is the trainer and what's the expertise of that particular trainer in that particular domain. It's also important that either trainer knows what's the subject and what the topic that I have to train the participant, and more than that, what will be the outcome. So Okay, so organization thank you may very much. calculate return on investment. Good. So thank you very much, Abdullah. So I am Yes, sir. going So to make two that's groups what now. I want to. So let me tell you, in your organization, mostly I'm giving you an example. Everybody can hear me. In your organization, you have a group of people who are involved in email communication, but their communication, the written communication is not very good, and the organization receives a lot of complaints, or they become fail to convince people or send proper documentation. So for this purpose, we have to arrange a training for our employees. So I want you to make a document similar to the one I shared with you for this training, and you have 20 minutes. So I make two groups, and in those groups, you can discuss these things with each other, and then please make a complete brochure related to training, and I'm going to open rooms for all of you. I think, and now people have started thinking to leave the group. I'm in the class. Should I make groups? Requirements clear? Yes, sir. Saman, Amna, Namra, Taha, requirement समझ आ गई जी, आप sir. लोगों को? यस सर नो सर, Yes, sir. किसको समझ नहीं आई? सर मुझे नहीं समझ आई। नम्रा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज हैं जिनका काम हाँ। ईमेल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उन्होंने इंग्लिश में कम्युनिकेशन करनी होती है, लेकिन जिनको वो कम्युनिकेट करते हैं उन लोगों को समझ नहीं आती है, तो इसके ऊपर बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। उन कंप्लेंट्स को दूर करने के लिए आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, ताकि लोगों की ये जो रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हों। तो उसके लिए पूरा एक ट्रेनिंग ब्रोशर बनाना है, क्योंकि एम्प्लॉइज़ को फिर आप ब्रोशर भेजेंगे, वो फिर उसको ऊपर साइन अप करेंगे ट्रेनिंग के लिए। तो मैं 2 ग्रुप्स बना रहा हूँ,
उन ग्रुप्स में आप लोग आपस में डिस्कस करके इसका कंप्लीट मुझे ब्रोशर अभी बना के शेयर करेंगे इन 20 मिनट्स. लेट मी ओपन द ग्रुप्स. ओके तो समन आप ग्रुप लीड कर सकती हैं. सर समन अगर आप कहें. जी सर. जी मैं कह रहा हूँ आप. जी सर. ओके. तो प्लीज लीड द ग्रुप. आपके ग्रुप में एक और अभी साहब या साहबा आएंगी, उन्होंने भी आई थिंक अस्सलाम ज्वाइन. निम्रा. निम्रा अस्सलाम वालेकुम. जफरीन ने वालेकुम आपके ग्रुप को सलाम। ज्वाइन करना, भी आ जाती हैं वो. जी इस ग्रुप को कौन लीड कर रहा है? Salma, would you like to lead the group, or Taha or Abdullah? Who wants to lead the group? अब्दुल्ला. ताहा अब्दुल्ला. अच्छा मैं करूँ. देख लेंगे जिसने भी करना है वो कर ताहा ले. ताहा करेंगे। ताहा सलमा. जी सर. शुरू हो जाए फिर. सर अभी तो हमने फॉर्म बनाएंगे ना पहले. पता नहीं है फॉर्म बनेगा क्या बनेगा, मुझे नहीं पता, बस बनाए कुछ. ठीक है सर, कोशिश करते हैं. प्लीज. ओके, टॉपिक क्या होगा हमारा? वही है जो सर ने दिया. बिजनेस करस्पॉन्डेंस. हेलो जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? बिजनेस जी वर्क। जी. जी, बिजनेस करस्पॉन्डेंस के ऊपर हमें एक ट्रेनिंग करवानी है टू इनहेंस बिजनेस करस्पॉन्डेंस कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय. तो अब जो हमें तो उसके लिए ब्रोशर बनाना है. जी तो मैं कह yeah, रहा हूँ we कि may अब वो use simple MS Word here. एक्चुअली आई एम यूजिंग माय मोबाइल. Me too. Salma, you are having laptop right now or not? Yes, I have the laptop. Oh, that's great. Blessing. Okay. ठीक है तो फिर you may connect your laptop. सलमा लीड करनी है फिर आज. बना देती हूँ और बाकी आप कर लेना, आप बोलते रहना ना। हाँ हम आपको बता देंगे फिर, कोई मसला नहीं है, लीड कर लेना. जी मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, ठीक है? Okay. सही है। सबसे पहले आप आगे शेयर स्क्रीन कर दिया आपने? हाँ जी कर दिया। सबसे पहले तो हेडिंग आ जाएगी 1 डे और 2 डे ट्रेनिंग, जो भी रखना चाहें, वर्कशॉप या अच्छा ट्रेनिंग. देखिए, हम पहले अगर कंपोनेंट मेन हेडिंग्स जो है ताहा, जी. अगर अगर हमारे जो मेन पॉइंट्स है अगर हम उसको पहले कैटर कर लेना तो फिर हम उनकी डिटेल में तो जा सकते हैं. नहीं मैं कह रहा हूँ कि ताकि कोई सबसे पॉइंट मिस ना हो जाए. एग्जैक्टली आप सही कह रहे हो. सबसे फ्रंट पे तो हमारी एक वो आ जाएगी ना, डेट आ जाएगी कि इस डेट को हम बनाने कैसे जा रहे हैं मुझे समझ और ट्रेनिंग देखिए, सिंपल चीज ये है, हम पहले बुलेट पॉइंट्स में जो है, सलमा आप इसके बुलेट पॉइंट्स बना लें. मैं पहले तो कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं ट्रेनिंग के, जो सर ने अपने ब्रोशर के अंदर मेंशन किए हुए थे. जो ठीक है, मेन 1 डे कंपोनेंट्स हैं ट्रेनिंग उसको बुलेट वर्कशॉप। पॉइंट. हाँ ये आप कर दें, एग्जैक्टली, या बुलेट आप एक पॉइंट्स काम करें, बना लें. यानी आप एक काम करें, आप 1 डे नहीं करें, आप इसको 2 डे कर दें, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए ना.
नहीं नहीं, ट्रेनिंग इतनी लेंदी होगी तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? 2 दिन एम्प्लॉयज के लगाएंगे, 2 दिन सैलरीज, 2 दिन की। तो 2 दिन की ट्रेनिंग कोई बड़ी थोड़ी है, हम लोगों के पास तो और ये तकरीबन एक वर्कशॉप हफ्ते की ट्रेनिंग। ओके, 1 डे ओके ट्रेनिंग होगी फाइन, हमारी। ठीक है ठीक है जी। हाँ ठीक है। ओके, और डेट क्या है? ठीक है। और सब्जेक्ट है बिजनेस करस्पॉन्डेंट। नहीं, पहले डेट बिजनेस क्या कॉरेस्पॉन्डेंट है? डेट, डेट हाँ वही कोई भी डाल दें जिस मेंशन दिन कर। कराची के अंदर एचआर टेक रखा हुआ सर ने। हाँ 11 11 मार्च है। मार्च रख लें। 25 फरवरी बिल्कुल। से 20। फेब तो गुजर गया। कहाँ से गुजरा? अभी तो ठीक है, फेब तो कल आनी। नो ठीक है जी। अच्छा, आगे और क्या इसमें मेंशन करना है? ओके वेन्यू। फिर हम तो अपना ट्रेनर का भी तो मेंशन करेंगे। बिल्कुल। पहले वेन्यू मेंशन, मैं जैसे जो उन्होंने भेजा ना उसको फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। वेन्यू क्या होगा हमारा? ओके ओके। वेन्यू होगा वेन्यू वो रख होगा लें ट्रेनिंग शेराटन होगा। सेंटर, ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग जो रूम, ट्रेनिंग मीटिंग सेंटर है रूम। वहीं पे करें। इंटरनल है ये? हाँ, शेरटन मीटिंग रूम, मीटिंग रूम। कॉन्फ्रेंस रूम हो जाएगा। ओके नो इशू। मीटिंग रूम ज्यादा बेहतर है। हम एक्सटर्नल बिल्कुल। ट्रेनिंग रूम भी हो सकता है, ट्रेनिंग हो रही है ना। ओके ठीक है मीटिंग ठीक ट्रेनिंग है। रूम। हाँ बिल्कुल, देखें और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ जो है ना वो होते हैं। मीटिंग भी हो सकता है, सब लोग ट्रेनिंग भी हो सकता है, मीडिया हॉल्स भी होते हैं। तो जिस सब तरीके अपना जी, अपना शेयर कर बिल्कुल रहे हैं। ट्रेनिंग तो रूम भी हमें कर और सकते हैं। ठीक है। ठीक अच्छा है। जी। अब हम बेसिकली अब हम एंड पे करेंगे। सलमा एट द टॉप ऑफ द हम्म, हेलो। सबसे ऊपर हमें ट्रेनिंग किस हवाले से है ये नहीं आना चाहिए था। ट्रेनिंग ये रिगार्डिंग इसके नीचे, बिजनेस इसके करस्पॉन्डेंस नीचे या फिर इस ईमेल करस्पॉन्डेंस या कुछ भी। अब मैं उसके नीचे लिख रही हूँ ना। अब हम बेसिकली ओके ट्रेनिंग कर क्या रहे हैं? इस हमारा क्या है? बिजनेस। ओके फाइन, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस। बिजनेस करस्पॉन्डेंस बिल्कुल। ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग है, कॉरेस्पॉन्डेंस है? इट्स करस्पॉन्डेंस, ANCE। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट। ओके ये हमारा टॉपिक हो गया ट्रेनिंग का। टॉपिक हो गया। तो ठीक है। उसके बाद अब आप मेरे ख्याल अब से ट्रेनर कौन मेंशन होगा? करें। ट्रेनर कौन होगा? सर को ही बना दें, गुलाम मुस्तफा सर। नहीं, हमको क्यों बोला? मैं होंगी ट्रेनर। हाँ अभी आपने ये सब जो है ना वो ओके हाँ स्टेराइब करना है। बिल्कुल, नो इशू। प्रेजेंट भी आपने करना है। हाँ सलमा डन का है। नाम डाल। फीस कम रखिएगा बस। अभी ये 500 रुपये होगी ना फीस। सही है। अब यहाँ पे मैं अपनी बायोडेटा बायोग्राफी लिखूं कि नहीं? हाँ रहने दूं? बिल्कुल आप लिख बिल्कुल, दें। आप एक्सपर्टीज लिखें। आप अपनी एक्सपर्टीज अपनी लिखें, आप किस एक्सपर्टीज तरीके लिखें से आप इस फील्ड में। लोगों को और मतलब बेहतर बना सकती हैं, क्या क्या आपके पास स्किल्स हैं। अब जैसे कि सर ने लिखा था, गुलाम मुस्तफ़ा इज एन HRD एंड OD प्रोफेशनल विद ओवर 15 इयर्स एक्सपीरियंस। बस हम भी तो यही लिख आप भी, लेते हैं। हाँ आप इसी को कॉपी कर दो कि समन ना, चल, सलमा 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 इज एन HRD and business excellence professional with over 15 years of experience professional, performance 20 years। management। परफॉर्मेंस नहीं, ये तो ट्रेनिंग परफॉर्मेंस पे थी ना। ये तो उस पे एग्जैक्टली बिजनेस। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली हमारा सलमान, होगा दैट्स व्हाट 20 आई ये वांट टू बिजनेस ऐड इन दैट। कॉरेस्पॉन्डेंस। हम लोग हाँ, बिजनेस बिजनेस एक्सीलेंस। करस्पॉन्डेंस एंड कंटेंट राइटिंग एक्सपीरियंस। कंटेंट राइटिंग और बिजनेस करस्पॉन्डेंस विल बी द बेस्ट। बिजनेस कम्युनिकेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब बताएं। 20 ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड
And what? communication and slash content. Acha, who will attend? मैनेजर्स वगैरह जिनमें मेलिंग सिस्टम होता है. Okay, all associates. अच्छा, अब इसका क्या था आगे? Let's see. बेनिफिट्स. आप लोग कुछ अंदर इनपुट दे सकते हो प्लीज? My connection got lost. Can anyone update me about the assignment a little bit? Okay, it's basically this assignment is about the, it says about emailing in your company, that you are using the email system to send messages, but they are not being clearly understood. So you want to design something for your company associates so that they better understand the email, how to write it and how to communicate in a more effective manner. L&D क्या है? लर्निंग एंड डेवलपमेंट. जी, कुछ तो बनाना था ना, कुछ का प्रोफाइल. अच्छा, एक communication मैं- 2 दफा repeat है. हम लोग
बेनिफिट्स ऑफ अटेंडिंग वर्कशॉप आ रहे हैं गूगल पे तो। So we have this. इसमें प्लीज आप लोग कोई भी जो भी चीज बतानी हो मुझे बताते जाओ, मैं इसमें ऐड करती जाती हूँ। Hello, anybody wants to say anything? Learning outcomes. The email is concise and clear, learning outcomes. The communication is concise and clear. The written. And clear. CONCISE, concise. Concise and clear. ठीक हो गया? We can add here one more thing, to present his idea in a formal way. अच्छा, ये benefits of attending में हमने मतलब और we can add, I think, मतलब इसमें थोड़ी सी मुझे एक background पहले दे दें तो I think I can add something. इसको वो कुछ देना पड़ेगा। बेनिफिट्स उन लोगों के लिए कि मतलब जो कि अटेंड कर रहे हैं ट्रेनिंग। जी अच्छा, इसको बनाते हैं। They will be able to construct a अटेंडिंग में एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा उनको। effective, be able to construct an effective email. They will be able to communicate more professionally. They will be able to communicate more. या इसका और चीज भी होती है, करेक्ट फॉर्मेट होगा, फॉर्मल प्रॉपर फॉर्मेट आ जाएगी लोगों को, है ना? या नहीं? Benefits of attending. अच्छा, इसमें ऊपर कुछ और हु शुड अटेंड सही है या इसमें और भी कुछ डालें? As we are talking of the matlab communication skill na, what happens in my organization, there are people who are very good in the technical side, magar they are not very good in the communication skills. What they tell to the HR department every time that we should have a training on regular basis for the communication skills, because once we go to the client side we lose our confidence. However we are good in our technical side, but we don't know how to present ourselves. So I believe that all those people should also attend who are in the technical departments, because they focus on their technical skills more rather than their
soft skills, I believe. Yeah, presentation skills. Technical associates. Okay, if we are saying who should attend, ये इसको cover नहीं करता कि all people who have an email system, company email system. Technical Yes, associates. we should be precise in this because email mostly I believe Only routes email. इसमें सिर्फ email email mostly ही है. कौन करता email है ये? mostly from the HR department, I believe, and the admin department and the finance. The support units are mostly sending emails inside the organization. Obviously, sale is communicating with the outsider stakeholders as well, and finance also with the vendors as well. But I believe that normally, आपके जो support units हैं, they are sending the emails frequently within the organization. Correct के बाद Benefits of that attend. Write your email in the correct tone नहीं आना चाहिए. Okay, correct tone, formality and content of the communication. Of the communication. So Content one of more thing that it should be understandable. The communication should be understandable to the target audience. Whoever the target audience is, he should be understanding whether it is supposed to be even for someone very junior in the admin department who doesn't have a very good English, but the content should be understandable for the target audience. तो ये हम इसमें benefits लिखेंगे. Make them write structured way for the recipient. Responds easily, Objectively. show the receiver and understand. Objective में आएगा. Objective में आएगा कि objective of the training is that कि target audience should understand the context. ठीक हो गया? Okay. बेनिफिट्स ऑफ अटेंडिंग में एक और पॉइंट ऐड करेंगे. कस्टमर कम्युनिकेटर्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगी. Okay. It will be beneficial for the customer communicator. It will be beneficial for customer communication. कस्टमर कम्युनिकेटर जो एसोसिएट होते हैं, जो कस्टमर से लिंक जिनका होता है. ठीक है. Are we done or do we need to have anything else on it? Hello people. और सही है या और भी कुछ करें? डिस्कस कर लेते हैं इसको. हाँ करें, बताएं. हाँ इसको डिस्कस कर लेते हैं. थोड़ा सा ऊपर से डॉट्स डालने से अच्छा लगेगा. थोड़ा कि बोर सा लग रहा था, तो थोड़ा सा कलरफुल कर दे. ओके. बैक पे तस्वीर डाल रहे. ट्रेनर प्रोफाइल. ट्रेनर प्रोफाइल. ओके. Communication in trainer profile we can add that he is having some sort of medals in this field or some certifications. He is an expert, you know. Number of books on communication लेकिन skill, body समन हम जो हम लोग अभी महरीन समन ये जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं, लेकिन हमने इसका स्टार्टिंग हमने वो कोई चार्मिंग नहीं रखी कि हम लोग करने किसके बारे में करने जा रही है. तो हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि वो कम्युनिकेशन के हवाले से कुछ बैकग्राउंड में कुछ होना चाहिए. आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ईमेल राइटिंग. इसको कुछ जाजी से नाम दे दे. हाँ हाँ. इंसर्ट में कोई पिक्चर आ रही हो बैक पे.
The intelligent way to communicate through writing. This could be the tagline. फिर से बताएं, हाँ। बहुत अच्छा बताया, कुछ को फिर से बताओ. The intelligent. The intelligent way to communicate. The intelligent way to communicate in through writing. वो असल में आइडियाज जल्दी से आते हैं, एकदम से स्लिप नहीं हो जाते. ये सही है, ये अच्छा लग रहा है. This looks really nice. अच्छा, इसको हम करते हैं bold. Okay, uppercase, center. अच्छा, layout, design. अच्छा, वी कैन ऐड इन इंट्रो. एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं कि communication is also an art. मतलब it's sort of an art. You can, I mean, as a good one liner. इसमें कोई थोड़ा ऊपर करें. anything you like? इसमें कुछ यार, एक ऊपर अच्छी लगी है. अब नीचे आ गए हो. हाँ, और ऊपर ऊपर ही. और ऊपर वो जो और पीपल का नेटवर्क सा बना होता. ये वाली, ये जिसमें व्हाट्सएप भी है और ईमेल्स भी बनी हुई है. और हाँ, ये दिस वाला? वन आई लाइक दिस. यस, हाँ हाँ हाँ. There we go. this looks funky and colorful now, yet हाँ. formal. यार हमारी टैगलाइन आई बिलीव गायब हो गई है. इज इट? No, I think it's disappeared. We just need to get it back. I'm just looking. I'm just going to cut this and put the tagline in front. I think I've done it. Wait, I'm just trying to get this the background. हाँ, मैं भी बैकग्राउंड ही बोल रही हूँ. बैकग्राउंड पे क्या Where did our tagline go? Ah, okay, now we do it. ये आप गूगल पे सर्च कर रहे हो या किसी ऐप पे सर्च कर रहे हो? नहीं, गूगल पे इंसर्ट करो तो आ जाता है.
यार ये पिक्चर को इंसर्ट करके ये जितना भी है ना इसको कॉपी करके वर्ड आर्ट पे ले आओ तो ये इसके ऊपर है ना मुझे वो आता नहीं बिल्कुल पेस्ट भी हो ये जाएगा। करना। मैंने बस आई डू इट ऑन द मैंने वो नहीं खोला हुआ ना पावर पॉइंट, मुझे हो नहीं रहा। नहीं पावर पॉइंट नहीं, इसमें भी हो जाएगा। ये जो है ना तस्वीर को पेस्ट करो और उसके ऊपर है ना वो वर्ड आर्ट के ऊपर जाओगे ना तो हो जाएगा। ये सारी वो ये टेक्स्ट जो है ना उसके ऊपर आ जाएगा तस्वीर के ऊपर। मुझे आता नहीं करना, आप कर सकते यार मैं सिस्टम पे नहीं हूँ, मोबाइल पे हूँ। मैंने पता नहीं कितने साल किया, आई एम रियली बैड एट। हाँ क्या सिचुएशन बेस क्या? हेलो अरे ये he was disconnected. हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ इसके अंदर सिचुएशन बेस्ड चीजें डाल दें कुछ, कि ग्रुप सिचुएशन डिस्कशन या फिर सिचुएशन बेस्ड जो है ना पार्टिसिपेशन ऑफ जो है ना इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स, ऐसी कोई वो चीज उसको डालें क्या, जिससे थोड़ी सी नहीं वो क्या बोलते हैं, वो जो एनर्जेटिक है। एक्टिविटीज कराते हैं, वो जो अक्सर ट्रेनर सॉफ्ट स्किल्स पे एक्टिविटीज नहीं कराते हैं, उनको क्या हाँ, बोलते हैं? ग्रुप एक्टिविटीज करवाते हैं। ये तो ग्रुप कम्युनिकेशन एक्टिविटीज कहते हैं उनको। बिल्कुल, कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटीज होती हैं लेकिन कम्युनिकेशन में भी। एक राइटिंग कम्युनिकेशन में कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है? वो तो मुझे पता है, चाइनीज विस्पर जो कराते हैं कि मतलब एक बंदा दूसरे को कोई मैं बात बताता बताता हूँ। है तो हाँ बोलिए देखिए, बोलिए। इसमें ऐसे हो सकती है कि राइटिंग के अंदर एक बंदा कोई चीज लिख रहा है मगर उसका मैसेज सही कम्युनिकेट नहीं हो रहा, आगे मैनेजमेंट ने कोई एक्शन ले लिया उसकी करस्पॉन्डेंस के ऊपर, जबकि उसका मैसेज कुछ और कम्युनिकेट करना चाह रहा था। ऐसी कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी करवा सकते हैं कि ग्रुप के अंदर डिस्कशन करें कि कौन कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जिससे जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बेस्ड मेथड के ऊपर कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन की वजह से कोई ना कोई सिनेरियोज पेश आए हो। ऐसी एक्टिविटीज भी नहीं, करवा सकते हैं। हम इस पे एक एक्टिविटी ऐसी देन कराते हैं कि देखिए फर्ज करें हमने ना आपको वीडियो के ऊपर प्रोजेक्टर के ऊपर एक मैसेज दिखाया और उसने सबने अपने अपने उसे जल्दी जल्दी एक पैराग्राफ दिखाया और वो सबने लिखा, ठीक है। अब जब सबने ओके। लिखा तो हमने उसे कहा है कि हमने 2 ग्रुप्स बना दिए ना। अब हमने एक बंदे से कहा है जल्दी जल्दी जो भी है ना वो जल्दी जल्दी ऐसे लिखे फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब उसने जल्दी जल्दी राइटिंग लिखी और उससे बोला कि वो पास ऑन करे। जब वो दूसरे तक गया तो उसको आधे लफ्ज समझ आए, आधे समझ ही नहीं आए, बिकॉज ऑफ द हैंड राइटिंग, ठीक है। यानी दिखाया सही क्या था लेकिन बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज नहीं, या अंडरस्टैंडिंग ऑफ के मेन कौन सी बात इस पैराग्राफ में से नोट करनी थी वो लिखी ही नहीं, ठीक है। ये एक्टिविटी, इस तरह बिल्कुल की बिल्कुल एक्टिविटी होती है। ये जो बिल्कुल हो हो सकती सकता है, है ऐसी एक्टिविटी हो इसको सकती आप ये कह सकते हैं सिचुएशनल ट्रेनिंग। हाँ लेकिन वो ग्रुप एक्टिविटी में ही आएगा ना, नहीं ठीक है डाल दें। वो ग्रुप एक्टिविटी डाल दिए मैंने। जी ओके। है। डन हो गया मेरे ख्याल से। अब इसको हम वाइंड अप करते हैं। लास्ट थिंग्स जो है वो इसमें लर्निंग आउटकम, डाल देते ओके हैं। लर्निंग बेनिफिट्स आउटकम, ऑफ अटेंडिंग आ गई हैं, लर्निंग नहीं आउटकम आ लर्निंग गए हैं। आउटकम। बिल्कुल बिल्कुल। आफ्टर अटेंडिंग ट्रेनिंग डिजाइन परफॉर्मेंस। सलमा ये चीज मेंशन कर दें, लर्निंग आउटकम्स क्या आएंगे? लर्निंग आफ्टर आउटकम्स अटेंडिंग होंगे आफ्टर अटेंडिंग द ट्रेनिंग he shall be able to communicate he shall be able to communicate a great communicator. ठीक है जी, मोर इफेक्टिवली। अच्छा, इसके अलावा ये लिख लें कि एम्प्लॉय को एबल टू कम्युनिकेट अगेंस्ट एम्प्लॉय व्हाट? एम्प्लॉय को एबल टू कम्युनिकेट अगेंस्ट सिंपल एंड इजी मेथड, या अगेंस्ट सिंपलिसिटी एंड इजी कम्युनिकेशन। ठीक है।
Basically, it's a method of communication we call keep it simple and make it easy method ना हाँ, और उसमें ये होगा कि कि वो communication basic, जो वो simple हो और easy ठीक है, और इसमें राइटिंग स्किल्स में वो भी ये भी सीखेगा कि बेसिकली एक्चुअली वो एड्रेस किसको कर रहा है, exactly ठीक है, exactly मतलब टू किसको करना management है और को सी किस सी तरीके से किसको करना करना है, ठीक है है। बिल हाँ, बिल्कुल absolutely वो उसको इसको हम ऐसे कर एड्रेस, सकते हैं हाँ whom to address in which manner और how to address जो है ना different cadres how to address different cadres within organization how to address different cadres different what, different cadres 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 different cadres and internally and externally एंड में आएगा ना, एड्रेस इंटरनली एंड externally बिल्कुल ये भी सही अच्छा कैडर्स में जो है ना ई जो आपने लगाया है ये नहीं आएगा सही हो गया, काफी है। बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया अब बेहतरीन हम है थोड़ा से फूल बूटे लगा लें। अच्छा जी, हाँ इसको डेट व्हेन ये हमारा बोल्ड में आ जाएगा और हम बुलेट ओके में कर देते हैं, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन बोल्ड में, ठीक है, और ठीक है, ये थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा gap कर देते हैं। ट्रेनर पे भी कोई ट्रेनर दूसरा कलर कर दें मेटालिक कर देते हैं, इसको हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। बाकी ये ऑब्वियसली उसमें ब्लैक में ही रहने देते हैं ना, ठीक है। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव्स को भी कोई कलर दे दें बोल्ड सही हो गया। इसके बाद इसको हम बुलेट्स दे देते हैं, नहीं 1 2 3 दे देते हैं, सही है। ठीक है अच्छा, उसके बाद ओके who should attend, ये भी रंगीन हो जाएगी हमारी सारी ब्रोशर। गोला घंटा ये हम, ठीक है। बेनिफिट्स, बोल्ड हो गया। इसके बाद नजर नहीं आ रहा ये वाला सही है। ठीक हो गया जी। लर्निंग आउटकम, अच्छा सलमा मेरे हिसाब से ये जो बेनिफिट्स हैं इसके अंदर ऐसा नहीं होगा लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप विद इन ऑर्गेनाइजेशन ये आएगा क्योंकि बेनिफिट हमारे इंटरनल है ना वहां पे तो एक्सटर्नल थे इधर तो मगर इंटरनल बेनिफिट्स हैं एक मिनट प्लीज, किधर कह रहे हैं आप, सॉरी। मैं बोल रहा हूँ ये जो बेनिफिट्स जो हैं हमारे इसके अंदर क्या ऐसा नहीं आ जाएगा कि आप बताओगे विद इन ऑर्गेनाइजेशन क्या बेनिफिट आप दे रहे हो कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप विद इन ऑर्गेनाइजेशन और ऐसी ये चीजें बेनिफिट ऑफ हम अटेंडिंग डाल का, सकते हैं बिल्कुल या फिर नहीं कहाँ ये नहीं नहीं लर्निंग नहीं आउटकम नहीं, में ये बेसिक, डालेंगी आप नहीं ये देखें, ये जो बेनिफिट्स है ना, ये वो बेट वाला हिसाब है
कि फिश को बेट चारा दिखा के ना फिश पकड़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये उनको नहीं बताएंगे ना कि देखो अगर तुम ट्रेनिंग अटेंड करोगे तो तुम्हें ट्रेनिंग मटेरियल मिलेगा, ठीक है, उसके साथ तुम्हें जो सर्टिफिकेट मिलेगा जब तुम ट्रेनिंग लोगे, साथ में तुम्हें जहाँ पे प्रॉब्लम्स है काउंसलिंग और मेंटोरशिप है, और फिर ग्रुप एक्टिविटीज होंगी। ये तो बेट है बेसिकली ना, वो चाय और खाना हम उसको इसीलिए तो दे रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आके अटेंड करें, वरना लोग तो एब्सेंट हो जाएंगे, वो कहेंगे हमारा टाइम जाया हो रहा है। वो बोलेंगे कुछ तो मिल रहा है खाने के लिए। हाँ, ये तो बेसिकली बेनिफिट, मतलब अब जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे अगर मुस्तफा वाला ब्रोशर देखो उसमें लिखा हुआ है चाय मिलेगी और खाना भी मिलेगा, तो डेफिनेटली को लोग उस लालच में भी चले जाते हैं कि चलो यार ट्रेनिंग सुने नहीं सुने खाना और चाय तो मिलेगा ना 2 वक्त। अट्रैक्टिव पॉइंट्स होते हैं। नहीं मगर चलें चलें, ठीक है क्योंकि इसको जब हम मेरी ट्रेनिंग्स ओके होती थी डन। ना, जब मैं रमीज अला वाला की ट्रेनिंग लेती थी, एक वो रमीज अला वाला की अट्रैक्शन थी कि वो ट्रेनर है आपने इंटरनेशनली। रमीज साहब की ट्रेनिंग ली है? हाँ मैंने ली हुई है, और दूसरा वो रमीज होती थी साहब का मैरियट योग्य और मैनमन की में। 2 ट्रेनिंग अटेंड की हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो होती थी मैरियट में, तो मैरियट में मतलब अगर 2 दिन होती थी तो एक दिन पाकिस्तानी कुजीन होता ब्रिज था और एक स्टोन दिन चाइनीज ट्रेनर कुजीन थे होता वो, था, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये बेसिकली अट्रैक्शंस होती है ना। बाकी हमने ऑब्जेक्टिव्स अपने लिख दिए कि इस ट्रेनिंग को हम Guys, कराना क्या चाह रहे हैं। हाँ क्या हुआ? सॉरी सॉरी, आपको नहीं किया। ठीक हो गया, मतलब आई होप इट्स क्लियर ना। ओके हाँ क्लियर है, डन। यस सही है। अभी टाइम रहता है क्या? Where the sea? जी आप लोगों की असाइनमेंट हो गई जी? यस सर। हाँ जी। आप लोगों ने ताजिक लोगों को फॉरनर्स को भगा दिया, उन्होंने माइंड किया कि जी आप लोग उर्दू में बात कर, मुझे मैसेज आया उनका। ओह सर आज ही हुई है उर्दू में बात। कितनी ये बुरी सारा बात है सर उर्दू में बात करना, कितनी बुरी बात है सर उर्दू में बात करना। नहीं, बहुत अच्छी बात। आइंदा पंजाबी में शुरू इंशाल्लाह। करते हैं। कल हम पंजाबी में बात करेंगे। मैं भी यही सोच रही थी। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। सर फिर हम लोग चले जाएंगे क्योंकि बात मुझे नहीं आती। वैसे भी चले जाएंगे। ओके जी, हु इज गोइंग टू प्रेजेंट फर्स्ट? मैं सलमा। करें सलमा। ओके वेट प्लीज। Okay. Let me know when you see my screen, okay? We can see it. It is visible? जी देख सकते हैं। Okay जी।
बेसिकली जी अब सारे उर्दू बोलने वाले हैं ना? जी जी, अब आने दें आप। ओके, इट्स अ 2 days ट्रेनिंग वर्कशॉप है जी, और डेट हमारी है 25 से 26 फरवरी ये 2021 की। टाइम हमने चुना है फॉर ट्रेनिंग 9 to 5 PM। ठीक है जी, और वेन्यू हमारा होगा बिकॉज दिस इज एन इंटरनल स्टाफ की ट्रेनिंग है, तो हमने अपना मीटिंग रूम या ट्रेनिंग रूम को सिलेक्ट किया है। ठीक है जी, और टॉपिक हमारा होगा जी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड कंटेंट राइटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप। ठीक है इतने जी, इतने एंड और ट्रेनर, हाँ जी बस एंड हमने ज्यादा फोकस किए ना। ठीक है, और ट्रेनर मिस सलमा वान हमने हायर की है। ठीक है अच्छा, जी, और हायर कर वो ली है, किसी वो तारुफ की अवेलेबल है मोहताज आजकल? नहीं है। जी जी, बस बहुत बिजी रहती है बस नहीं, कोरोना है ना, इसलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं जी, हमने नहीं हायर से मुराद ये नहीं ऑन पैनल पे लिया है, हमने उनको बेसिकली ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। ठीक है, अच्छा, वो उनका माशाल्लाह से जी उनका 20 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड कंटेंट राइटिंग में, और बड़े अच्छे इंटरनेशनली डोमेस्टिकली उन्होंने काम किया हुआ है, बहुत बड़ी कंपनीज लाइक अगर उनका कलन और 20 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर एज इजीली पता की जा सकती है। मिस सलमा अमान की। लेकिन एज का ताल्लुक नहीं। नहीं, ये बड़ी ठीक है अट्रैक्शन जी, होती है। और वैसे भी एज इज अ नंबर। आपको ठीक है यकीन जी, नहीं है तो समझ सर और समझ एज वाला एज मैटर सवाल करती ना है जी। लेडीज वैसे को सर सर एज एज इज वाला जस्ट अ सवाल तो नंबर। घुमा देती हैं लड़की। हाँ, मैंने इसीलिए कहा कि अगर लिखा सर हो ना। मैंने बड़े सालों से एज वाली बात पे मैं जवाब ही नहीं देती हूँ। आफ्टर यू क्रॉस 45, after you cross 45 you do not comment about age. वो आप, इसका मतलब है आप जब जवाब नहीं देते, इसका मतलब है आपकी तरफ से जवाब ही होता है। सर जवाब दे दिया, अब एज का सिर्फ फर्क ही नहीं पड़ता आप तो। सही है, मुझे क्या पता, मैं तो टीनेजर हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है जी। चले जी, हम अपने मिस सलमा वान के इंट्रोडक्शन से आगे चलते हैं। बेसिकली मकसद क्या था हमारी कंपनी का कि हम ये क्यों करा रहे हैं जी, कि हाउ टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट मैसेज easiest way in business, comprehensive communication using 4 W's and 1 H method, organize and plan successfully communication, और to make you communication champion जी, ये हमारा मकसद था अपने स्टाफ के लिए। और अब इसको अटेंड कौन करेंगे? बेसिकली हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर्स और एचआर एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑफिसर्स लेवल, और जितने भी लाइन मैनेजर्स और उनके सुपरवाइजर्स इस ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे जी। बेनिफिट हमने सबसे पहले दिया है क्योंकि हमारे साथ ज्यादातर हमारी कंपनी कराची में है, डेफिनेटली चाय और खाना सर्व करेंगे तो इसके लिए वो ज्यादा आएंगे, और उनको ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेंगे, और फिर बेसिकली काउंसलिंग एंड मेंटरशिप होगा, और साथ में कुछ हमने ग्रुप एक्टिविटीज कराएंगे टू मेक देम अट्रैक्टिव ट्रेनिंग को। और आउटकम हमको इससे ये मिलेगा जी कि आफ्टर अटेंडिंग द ट्रेनिंग दे एबल टू कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली, employee could able to communicate again simple and easy method, learn whom to address in which manner, and how to address different candidates internally and externally. ये सारा जी आउटकम होगा हमारे इस ट्रेनिंग 2 दिन की वर्कशॉप से। थैंक यू जी, किसी के कमेंट्स, को क्वेश्चंस, ऑब्जर्वेशन, ब्ला ब्ला ब्ला? इसमें हाँ कॉस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि बेसिकली ये स्टाफ के लिए है, तो यहाँ अमाउंट इंटरनल स्टाफ, सो दैट्स व्हाई वो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। अच्छा, नीचे की सर जगह 4 W and 1 H मेथड क्या होगा? जी बिल्कुल, इस पे आपको ये ताहा रोशनी डालेंगे जी, प्लीज बताइए। मैंने नहीं ऐड करवाया था, ये मकसद ने करवाया था। मकसद नहीं, वो दूसरे कौन थे? ये अब्दुल आला ने करवाया था। हाँ, अब्दुल अब्दुल आला। आला सॉरी। नहीं, चाहे जिसने भी ऐड कराया तो बाकी ग्रुप मेंबर्स को पता होना चाहिए, ये तो आपने गलत बात की है।
ये तो अब ये चीज नहीं होती। आपको पूछना चाहिए था कि भाई इसका मतलब बताओ, अगर बाहर का बंदा पूछ नहीं, सकता है। उन्होंने बिल्कुल बताया था, और लेकिन मुझसे नहीं, स्किप हो एक गया, एक मिनट सॉरी। सलमा, अच्छा आपको भी नहीं पता? नहीं, उन्होंने सर एक्सप्लेन वो किया था। मेरा मेरा सर नेट क्या डिस्कनेक्ट चीज हो है गया था उस वक्त। सर? W's वाला why, what, where, when यस, and हु, how। व्हेन, हु, हाउ। जी, whom and wow। अब अच्छा सर वो मुझसे WH पूछिए, क्वेश्चन। हाँ, सर मुझसे सही सही पूछिए। सही सही वो जो चार सवाल सही ही तो थे, where, जी who, सर यही वाले है ना? अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ and अटेंडिंग why के क्या क्या you are थे? writing हेलो it। सलमा जी जी। सर। अच्छा सर ये जो 4W and 1H मेथड की बात हुई है, इसमें जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, और ये मैसेज कम्युनिकेशन के टूल्स हैं अगर हम पढ़ें तो। ये हमने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। ये कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिकेशन जो होती है उसमें 4W and 1H मेथड को रखा जाता है कि कौन करेगा व्हाट, वेयर, व्हेन और व्हाई, और 1H यानी हाउ कैसे होगा। ये तमाम चीजें जो है पूरी हम सिखाएंगे एम्प्लॉयज को। यानी अगर आप ये लास्ट हमने देखे ना आउटकम, हमने उसमें यही लिखा है कि बेसिक जब वो ऑफिशियली एड्रेस करेगा तो उसको ये पता होना चाहिए कि जो सब्जी रखेगा। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग दिखाएंगे। जी चाय भी है, लंच नहीं, भी है, बेनिफिट्स ट्रेनिंग मटेरियल भी है, सर्टिफिकेशन भी है, काउंसलिंग, मेंटोरशिप भी है, ग्रुप एक्टिविटीज है। ठीक है जी, जबरदस्त। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी एल्स? चरण जी मुबारक हो, एक्सीलेंट, थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू थैंक यू सर। नेक्स्ट। पर हुआ क्या, बेटा की बेटी? आपने बताना है। अच्छा, एक्सीलेंट, लड़का। पाकिस्तानी माशरे में लड़का ज्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए लड़का बना। ओके जी, नेक्स्ट हु इज गोइंग टू प्रेजेंट? सर हम लोग प्रेजेंट करेंगे। ओके प्लीज। शेयर द स्क्रीन। ओके शेयर हो जाए तो बता दें। कैन यू सी इट? यस। प्रोग्राम हमारे कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स हैं, इन हाउस रिसोर्स है L&D के अंदर। उन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं अबाउट कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जबरदस्त जी, टॉपिक आपने टाइटल बड़ा जबरदस्त दिया था, इंटेलिजेंट वे टू ऑडियंस इन ऑल बिजनेस राइटिंग। थैंक यू सर। उसके बाद सर ये है कि इसके जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं। अच्छा, वैसे ना अगर आप मौका दें इसकी प्रेजेंटेशन जो है नम्रा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। सर बिल्कुल निम्रा देंगी। निम्रा, ओवर टू यू। सर आज नहीं बोले कि मैं फिर कभी दे दूंगी। ये आपका कभी नहीं फिलहाल आना, नहीं दे आज आ सकती। गया। नहीं, आज हम नहीं जा रहे, आज आप नहीं देनी प्रेजेंटेशन। आज धरना होगा, निम्रा धरना होगा आज। निम्रा बोलेगी, वरना नहीं बोलेगा कोई। निम्रा आप नहीं ना बोलेंगी तो जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा। धरना आपके होगा, घर के धरना सामने होगा, होगा। आपके घर के सामने होगा। चाय पानी हम अपना ले आएंगे। ये चाय पानी भी इसी को पिलाना पड़ेगा ताकि फिर धरने के असरात सामने आएंगे ना। वैसे तो कहेगी बैठे रहो सामने। चलो फिर बिस्कुट भी लेके आना। सर ये डिफिकल्ट है मेरे लिए, प्लीज। नहीं प्लीज प्लीज, हमारी तरफ से 3 दफा प्लीज। निम्रा आप कर सकते हो। अच्छा, आपके बहुत इतनी अच्छे देर से आइडियाज तो थे, उर्दू ही प्लीज बोल रहे उर्दू में कर दो। गो फॉर इट निम्रा।
अच्छी बात है, उर्दू में ही कर दो। चक दे फटे उठ जा कुड़िए। ये सिद्ध- सर आज उन्हें करने दें प्लीज, मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं बिल्कुल नहीं प्रिपेयर होती हूँ नहीं इस चीज जी, के लिए कि नहीं मैं जी, आप present करूँ। प्रिपेयर्ड ही हैं। आज आज जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा। निम्रा होगी, निम्रा होगी। सर मेरा मजाक तो ना बनाए, मतलब नहीं नहीं, मजाक नहीं, हम नहीं, तो हम आपको आपसे कन्विंस प्यार करने के लिए कर कह रहे रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। सर मुझे तो ऐसे ही फील हो रहा होता है, लाइक जो आता है मेरे माइंड में वो भी कहीं निकल जाता है। नहीं नहीं, इसीलिए तो आपको कह रहे हैं बेशर्म हो जाए आप, कोई ऐसी बात नहीं। सबसे बड़ा बेशर्म मैं हूँ, रोजाना प्रेजेंटेशन देता हूँ। आज देखें वो चले भी गए हैं, वो बाहर से 3 लोग थे, 2 ताजिकिस्तान से, 1 मोरक्को से, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी आप उर्दू बोल रहे हैं, और पैगाम किसको मिला? मुझे मिला। तो सबसे ज्यादा बेशर्म कौन हुआ यहाँ पे? माई सेल्फ। वो कहते हैं जिसने की शर्म उसके फूटे करम। नम्रा का नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट कहाँ से लूँ, क्या बोलूँ, ऊपर क्या से, सबसे ऊपर टाइटल बताएं। ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर ऊपर से आए आप। सर ये स्क्रीन 5 स्क्रीन थोड़ी नीचे कर देंगे, सर ऊपर ये करे 10 बस मिनट बस और आगे 10 मिनट और सोचेंगे तो हो गया यार ना बोल करो बोल यार, रही है तो बोल पहले रही बड़ी है। मुश्किल से हम उसको मना रहे हैं तलहा, ऊपर से तुमने अपनी बीच में साइंस लगा दी। हमने ऊपर से हो नीचे गया कर ली, ऊपर से आए आप। ऊपर से कर ली स्क्रीन नीचे, चले बोले। सर हमारे ब्रोशर का एक्चुअली नाम है द इंटेलिजेंट वे टू कम्युनिकेट थ्रू राइटिंग। ओके। जो ट्रेनर प्रोफाइल है हमारी, वो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैविंग 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनको, जिन्होंने बुक्स लिखी हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे, बॉडी लैंग्वेज पे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लिसनिंग एंड बिजनेस राइटिंग पे। ठीक, नेक्स्ट हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रेनिंग के लिए वो हैं कि बी एबल टू आइडेंटिफाई योर target audience in the business writing. Second one is write your email in the correct tune, formality, and content of the desired communication. The target audience should understand the content. मतलब सही बोल रही है, सही बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है। नेक्स्ट इज जो लोग उसे अटेंड करेंगे वो सुपरवाइजर जो मैनेजर्स वगैरह हैं, जो जिनके पास पीसीज वगैरह हैं, वो लोग अटेंड करेंगे, और टेक्निकल एसोसिएट करेंगे, और लेवल वाइज अटेंडेंस उन लोगों की होगी। सेकंड, बेनिफिट्स ऑफ अटेंडिंग। Content and effective emails, they will be able to communicate more professionally, ensure the respond easily, and ensure they receive and understand all the specifies you need. Make them write structure emails. It will be beneficial for customer communicator. बस आखिरी बच्चा है, इसको भी बोल दे। लर्निंग आउटकम्स, हम क्या सीखेंगे उससे? टू बी एबल टू राइट अ मोर इफेक्टिव ईमेल्स, the written communication is concise and clear, formal presentation of ideas. सर मतलब हम ये प्रेजेंटेशन लेकर हम यकीनन एक इफेक्टिव ईमेल्स करेंगे जो सब लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, और हमारी एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो। जबरदस्त, एक्सीलेंट। कितनी सी बात थी। थैंक यू सर। पानी पी ले, जबरदस्त निम्रा, really good. मैं बिल्कुल पानी पीने लगी हूँ। थोड़ी सी शुगर भी ले लीजिएगा अगर शुगर लेवल डाउन हो रहा है। इतनी तो जबरदस्त आपने जी, ये मुझे तो समझ नहीं आ रही है मुझे बताएं, किसी को लग रहा था कि ये पहली दफा ये प्रेजेंटेशन दे रही है? नहीं नहीं सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा।
जी महरीन, आप बताएं कैसा निमरानी प्रेजेंटेशन? एक्चुअली सर जब क्लास ओवर हो जाती है, नहीं सर जब क्लास ओवर हो जाती है ना, तो वीकेंड पे मेरी सिस्टर आती है, तो आप जब रिकॉर्डिंग वगैरह भेजते हैं तो मैं अलग से सुनती हूँ और फिर वो मुझसे पूछती हैं, तो फिर उनको मुझे बताना पड़ता है ये सब कुछ। समन, आपका क्या हाल है? ये लग रहा था कि इन्होंने पहली दफा प्रेजेंटेशन दी। पता नहीं आप क्यों